Cost concept. So in the last video we have done discussion about what is cost, what are the different types of cost, like implicit cost, explicit cost, short run cost. In the short run cost, two types were there, that is fixed cost, variable cost, and also we have done discussion about production cost, selling cost. Apart from all this, we have done discussion about the behavior of fixed cost, means fixed cost का behavior कैसा है, उसका curve का shape कैसा है, variable cost कैसा है, and also we have done discussion about total cost, means how to derive total cost, what is the shape of total cost. All these points we have covered in our last video. Okay, so today we'll move forward. We will discuss about average fixed cost, average variable cost, average cost. Okay, so but before starting, guys, I want to say hello, welcome, नमस्ते, सत श्री अकाल. आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल कॉमर्स अड्डा पे. सो गाइज जस्ट स्टे ट्यून विद मी एंड to comment whatever you feel about this video in the comment box. If there is any kind of suggestion, then too you can comment, and if there is any like, then obviously you can like, comment, share and subscribe. Okay, so before without wasting time, let's get started with the topic. So what are the contents that we are going to cover today is average fixed cost, means what is average fixed cost, what is the behavior of our average fixed cost, what is the formula for deriving average fixed cost, means all these points. Same in the case of average variable cost, and lastly average cost curve, the main thing of the main topic of today's video. Okay, in this we'll discuss how average cost curve is summation of average fixed cost and average variable cost. Okay, so all these points will cover today. So guys, let's get started. And yes, अगर जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी, जिसे नहीं पता कि फिक्स कॉस्ट कर्व का शेप क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट कर्व का शेप कैसे होता है, एंड टोटल कॉस्ट कर्व हम डिराइव कैसे करेंगे, क्योंकि बिना इन तीनों पॉइंट्स के क्लियर किए, जब तक इनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं समझ सकते. सो गाइज, जिसने भी नहीं देखा है वीडियो या जिसे भी ज़रा भी डाउट है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हो. एंड येस, इफ़ यू गाइज वांट PDF ऑफ द वीडियोज़, यू कैन गो टू माई टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेरे मेंशन है. ओके, so let's get started with the topic. The first thing is average fixed cost. Okay, so पहले मुझे ये बताओ आप सब कि एवरेज किसी भी चीज़ का हम कैसे निकालते हैं. जस्ट सपोज करो कोई एक लंबी सी लिस्ट है, उसमें वैल्यूज़ कुछ लिखी हुई हैं, कुछ अमाउंट्स लिखे हुए हैं. अगर आपको कहा जाए कि इनका एवरेज निकालो, तो आप कैसे निकालते हो? उनका समेशन, उन सारे वैल्यूज़ का समेशन मीन्स टोटल ऑफ वैल्यूज़ divided by quantity, means numbering of that values. What is the number of that value? Okay, if 10 numbers are there, 10 values are there, so divided by 10, and total of that value divided by 10, that is your average. Okay, so this is the basic concept. एवरेज तो कहीं भी बॉस निकालना हो, किसी भी चीज़ का निकालना हो, तो उसका फंडा बस यही है, टोटल अपॉन क्वांटिटी. ओके, सो यहाँ हमें क्या डिस्कस करना है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि फिक्स्ड कॉस्ट होता क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट का बिहेवियर कैसा होता है. ओके, सो फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स वट एवर द अमाउंट, वट एवर द फिक्स्ड अमाउंट वी एज अ प्रोड्यूसर इन्वेस्ट, we as a producer or as a manufacturer invest over fixed assets. फिक्स्ड एसेट्स आई होप आप सबको पता होगा, लाइक प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, या फिर कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म एसेट जो हमारे साथ बहुत सालों तक रहे, या जिस एसेट पे हम बहुत लंबा अमाउंट या बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट. लाइक लैंड, वो एक दिन के लिए तो होता नहीं है कि आज खरीदे कल बेच दिए, फट गया, ऐसा कुछ तो सीन नहीं है. एक बार अगर ज़मीन खरीद लिया, लैंड परचेज कर लिया, तो हो सकता है वो लाइफ टाइम रहे, हमारे लाइफ टाइम रहे, 1 साल, 2 साल, 10 साल, मीन्स 20 years, मीन्स देयर इज़ नो एक्सपेक्टेड टाइम. So the amount invested over that land
दैट इज़ योर फिक्स्ड कॉस्ट, राइट. तो what is basically fixed cost means the amount of investment done by the manufacturer over fixed assets which is for long term, obviously which is for long term, that is your average fixed cost, sorry, that is your fixed cost, right. अब हमें क्या अब दूसरा पॉइंट क्लियर करना है कि फिक्स्ड कॉस्ट का बिहेवियर कैसा होता है. ओके, सो जस्ट इमेजिन कि यू आर अ प्रोड्यूसर, यू आर अ industrialist, you people are industrialist and you have a big empire, right. so अब हमें क्या इमेजिन करना है कि सपोज हमारा कोई प्रोडक्शन यूनिट है, हमें किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं हम अपने इंडस्ट्री में, राइट. अब हमें जब ऑर्डर मिलता है उस पर हमारे कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए, तो ऑर्डर में भी 100 यूनिट्स हो सकता है, मे बी 1000 यूनिट्स हो सकता है, मे बी 5000 हो सकता है, मे बी उससे भी ज़्यादा हो सकता है, या फिर मे बी 0 हो सकता है. बट फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा. आई हैव टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो कि नो मैटर इफ़ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस और नॉट, नो मैटर इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग 0 यूनिट, नो मैटर इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट, और नो मैटर इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट, द फिक्स्ड कॉस्ट दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट्स. Okay, whatever will be the level of production, your fixed cost will be constant. Either it is 0, either it is 100, either it is 1000, either it is 10,000, doesn't matter. Your fixed cost will remain same. Okay, अब आप क्वेश्चन कर रहे हो कि अगर कैसे. So guys, go to my last video, there I have done discussion, a broad discussion over this. So आज का हमारा टॉपिक क्या है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है. ठीक है, हमने डिस्कस किया कि फ़िक्स कॉस्ट क्या होता है. फ़िक्स कॉस्ट एक लॉन्ग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो हम किसी फिक्स एसेट्स पे करते हैं. ओके, फ़िक्स कॉस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है एवरी लेवल ऑफ आउटपुट पे, आइदर वो 0 हो या फिर 100 हो, 1000 हो, नो मैटर व्हाट इज़ द लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट, किसी भी कमोडिटी का या किसी भी प्राइस का, किसी भी वैल्यू का अगर एवरेज निकालते हैं तो हम फॉर्मूला सिंपल से क्या कहते हैं कि एवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इज़ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. ठीक है, मीन्स टोटल अपॉन दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी. ओके, सो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. एवरेज मतलब एक यूनिट का प्राइस निकालना. ठीक है, सो यहाँ पे पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे क्या फिक्स कॉस्ट इनकर हो रहा है, दैट इज़ योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. आप मेरे वर्ड्स पे क्लियरली जाओ. पर यूनिट ऑफ आउटपुट मीन्स एक एक सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट पे जो फिक्स्ड कॉस्ट इनकर हो रहा है, एक सिंगल यूनिट पे जो फिक्स्ड कॉस्ट इनकर हो रहा है, दैट इज़ योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, राइट. अब हम एक सिंगल यूनिट को के प्राइस को अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, तो आप क्वेश्चन करो कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है. तो सिंपल है बॉस, टोटल अपॉन क्वांटिटी. तो अगर हमें पूछ रहा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो जाहिर सी बात है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी. ओके, सो हियर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, राइट. Average fixed cost means AFC, total fixed cost means TFC, right? अब हम मूव ऑन करते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होता है. ओके, सो शेप डिस्कस करने से पहले हमें ये चार्ट क्लियर करना है, हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट का बिहेवियर कैसा होता है, उसके वो डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे कैसा बिहेव करता है, ये चीज़ हमें क्लियर करनी है, राइट. तो आप देख सकते हो हमारे लेफ्ट साइड में एक चार्ट है. ठीक है, इस चार्ट में मेंशन है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट, लाइक 1 से स्टार्ट हो रहा है 8 तक जा रहा है, बट यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 0 to 8 भी जा सकता है, राइट. सो जस्ट इमेजिन कि अगर 0 यूनिट ऑफ आउटपुट है, सबसे पहला लेवल जो है वो 0 है, जहाँ पे हम प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे हैं, एकदम मतलब प्रोडक्शन मेरा बंद हो पड़ा है. ठीक है, बट
अगर प्रोडक्शन बंद पड़ा है फिर भी आपका लैंड तो वही है, आपका इंडस्ट्री तो वही है, आपके मशीन्स तो इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी, तो आप कॉस्ट तो इनकर कर रहे हो ना। ओके, सो ज़ीरो लेवल पे भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 10 है, 1 पे भी 10 है, 2 पे भी 10 है, 5 पे भी 10 है, 8 पे भी 10 है। मीन्स एवरी लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है, 10 है। हमने ये अज्यूम किया है कि 10 है, 5 भी मान सकते हो, 20 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, ये आपकी विश है। ओके, सो हमने अज्यूम किया कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 10 है, जो 0 पे आउटपुट पे भी 10 ही है, 1 पे भी 10 है, 6 पे भी 10 है, 8 पे भी 10 है। अगर 10 पे जाते 10 यूनिट ऑफ आउटपुट भी होता तो भी वो 10 रहता, राइट। अब टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमारा 10 10 10 10 10 है, यू कैन सी। अब हमें निकालना क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। मैंने क्या बोला कि एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए ये जो 10 है ना, जो कांस्टेंट 10 है टोटल फिक्स कॉस्ट का, उसे हमें डिवाइड करना है लेवल्स ऑफ आउटपुट से। सो 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 डिवाइडेड बाई 3 3.3, 10 डिवाइडेड बाई 4 2.5, सो ऑन। ठीक है, सो ये निकला हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट, राइट। अब नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है। सो लेट्स से हमने एक वाई एक्सेस लिया जिस पे हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व का एवरेज फिक्स कॉस्ट का अमाउंट लिखा, एक एक्स एक्सेस लिया जिस पे हमने आउटपुट का अमाउंट लिखा, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो अब हमें कर्व ड्रॉ करना है। हम कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, हमारा आउटपुट जब 1 है तो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट 10 है, यू कैन सी। ओके, टोटल फिक्स कॉस्ट 10 है, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी 10 है, तो हमने 1 पे 10 मार्क किया। ठीक है, जब आउटपुट इंक्रीज हुआ 2 तो हमारा AFC जो है एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो फॉल हुआ, 5 हो गया। 3 जब आउटपुट हुआ, आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है, आप देख सकते हो चार्ट में भी, आप देख सकते हो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, एज द आउटपुट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग द एवरेज फिक्स कॉस्ट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, पर यूनिट कॉस्ट जो है हमारा वो डिक्रीज होता जा रहा है। एक सिंपल सी बात है, अगर हम प्रोडक्शन 10 यूनिट का कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन 10 यूनिट का कर रहे हैं तो पर यूनिट का जो प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन 1000 यूनिट का कर रहे हैं तो पर यूनिट का जो प्राइस होगा वो बहुत कम होगा। सो वही सिंपल सा फंडा है कि जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट हमारा इंक्रीज हो रहा है, हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है। सो आप ग्राफ में देखो, आप चार्ट में देखो, आप इस कर्व का शेप देखो, जैसे जैसे आउटपुट राइट साइड में इंक्रीज होता जा रहा है, हमारा जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। द स्लोप इज लाइक दिस। ओके, ये जो स्लोप है इसे हम कहते क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब ये किस चीज़ का नाम है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसे क्या बोलते हैं, ये मतलब क्या है, इसे ऐसा क्यों कहते हैं, इस शेप को ऐसा क्यों कहते हैं। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस हैं माइंड में, सो लेट्स जस्ट मेक इट क्लियर। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप कभी भी कोई भी पूछे कि व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का शेप क्या है या फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कैसा होता है, तो सिंपल सी बात है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब वो बंदा अगर ये पूछता है कि इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है, इसे हम ऐसा क्यों बोलते हैं, सो एक सिंपल सी बात है। ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को AFC कर्व को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों कहते हैं, उसका एक सीधा सा लॉजिक है कि अगर हम कोई पॉइंट इस AFC कर्व पे लेते हैं, राइट, लाइक इस AFC कर्व पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, लेट्स सपोज कि ये डॉटेड पॉइंट्स हैं,
ठीक है, हमने ये सबसे ऊपर वाला पहला वाला पॉइंट लिया। कौन सा पॉइंट लिया? सबसे ऊपर का, ये जो फर्स्ट पॉइंट है जो लेवल 1 पे है, वो पॉइंट हमने लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि अगर कोई पॉइंट, लेट्स से हमने एक पॉइंट लिया, सबसे पहला वाला पॉइंट, अगर उस पॉइंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? आउटपुट से। ठीक है, अगर ये पॉइंट है 10 पे और इस 10 को हम आउटपुट लेवल से, यानी कि वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस का 1 से वाई एक्सिस के 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल फिक्स कॉस्ट क्या मिलता है? 10 मिलता है। 10 इंटू 1 10। ठीक है, हमने ये सेकंड पॉइंट लिया जहाँ पे हमारा आउटपुट जो है 2 है और एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? 5 है। ठीक है, आप इस चार्ट में, आप इस ग्राफ में देखो, ये जो सेकंड डॉट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जस्ट अबव, अगर हम उस डॉट को कंसिडर करते हैं और उसके लेवल ऑफ आउटपुट को एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 10 मिलता है। 5 इंटू 2 10। ठीक है, हम मूव ऑन करते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे हमारा लेवल ऑफ आउटपुट क्या है? 3 है और हमारा जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो 3 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, अगर हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 3 पॉइंट समथिंग से तो अप्रॉक्स हमारा क्या आता है? TFC 10 होता है। सो हम इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों कहते हैं? सिर्फ इसी वजह से कहते हैं कि उस AFC कर्व पे हम कोई भी पॉइंट ले लें और उसको अगर हम आउटपुट से, लेवल ऑफ आउटपुट से मल्टीप्लाई करें तो हमें TFC मिलेगा जो हर लेवल पे कांस्टेंट है। अगर हम पहला आउटपुट का लेवल देखें तो भी कांस्टेंट है, दूसरा देखें तो भी वही है, तीसरा देखें तो भी वही है। मीन्स कुछ भी आप मल्टीप्लाई करते जाओ, किसी भी लेवल के आउटपुट से AFC का मल्टीप्लाई करते जाओ, हमें TFC क्या मिल रहा है? कांस्टेंट मिल रहा है। इसी वजह से हमारा AFC कर्व जो है वो क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, आप यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन पार्ट देखो कि इफ़ वी टेक एनी पॉइंट ऑन AFC कर्व, if we take any point on AFC curve, like on this curve, and multiply AFC at that point with the corresponding level of output, यही मैंने कहा कि AFC कर्व का कोई भी पॉइंट उसके corresponding level of output से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? TFC मिलता है। ठीक है, and that will always be same। ठीक है, so what this shows that total fixed cost remains constant at all levels of output, right? अब उसका explanation देखो, AFC being rectangular hyperbola shows that AFC decreases as output increases। मैंने चार्ट में यहाँ शो किया कि जैसे जैसे आउटपुट हमारा इंक्रीज कर रहा है AFC हमारा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट अपने दिमाग में रखो कि कभी भी कोई भी पूछे ना कि AFC कर्व का बिहेवियर कैसा है, तो भैया सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करेगा हमारा AFC कर्व जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है? AFC को अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई AFC विद द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ क्वांटिटी एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, AFC is into Q is equal to TFC, which is constant at all levels। means अगर हम लेवल 4 लें, 4 लेवल ऑफ आउटपुट लें और 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिलेगा। अगर हम 8th लेवल ऑफ आउटपुट लें और 1.25 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिलेगा। मीन्स हर लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर हम उससे कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ AFC से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? TFC मिलता है, और वो TFC क्या है? कांस्टेंट है, वो कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये फिक्स्ड वर्ड पकड़ के बैठ जाओ कि बस भैया फिक्स है तो फिक्स है, चेंज हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सो इसी वजह से हमारा AFC कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्लियर? आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, आई विल रिप्लाई ओवर देयर ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तरफ कि व्हाट इज़ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ भी वही सिंपल सा फंडा है, एवरेज
निकालना है तो टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सो यहाँ पे क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, वहाँ पे क्या था फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यहाँ पे क्या है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है। सो वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज़ नॉट फॉर लॉन्ग run, which is not for which we didn't have made a long investment, a large investment, which is for short run, and the behavior is it can be zero, it can be negative plus, और means जो ये level of output के साथ है variable cost जो है level of output के साथ बढ़ता या घटता रहता है। means as the level of output will increase वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज। सिंपल सा फंडा है। फिक्स्ड कॉस्ट के केस में क्या था, हम प्रोडक्शन अगर नहीं कर रहे थे, हमारा प्रोडक्शन लेवल अगर ज़ीरो था, फिक्स्ड कॉस्ट फिर भी इनकर हो रही थी। क्यों? क्योंकि लैंड भैया हम बेच नहीं दे रहे हैं, इंडस्ट्री हमने सेटअप किया है तो उसे रातों रात गिरा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एंड वेरिएबल कॉस्ट के केस में क्या है कि अगर हमारा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हम वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय ही नहीं करेंगे। अगर हम उन्हें एम्प्लॉय नहीं करेंगे तो हम उन्हें सैलरी ही नहीं देंगे। तो अगर लेवल ऑफ आउटपुट ज़ीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो हो सकता है। अगर लेवल ऑफ आउटपुट 10 है तो उसका वेरिएबल कॉस्ट उसके हिसाब से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या निकालना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ABC इज इक्वल टू TVC बाई डिवाइडेड बाई Q। ABC मीन्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट। TVC मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। ठीक है, अब बात आती है इसके भी चार्ट की और इसके भी ग्राफ की, कि इसके ग्राफ का शेप कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चार्ट को कवर करते हैं कि इसका चार्ट कैसे हम डिराइव करेंगे। सपोज लेट्स से हमने आउटपुट यूनिट जो लिया वो 1 लिया। ठीक है, अगर सपोज करो हमने 0 लिया होता तो क्या होता, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारा 0 के केस में भी 10 ही रहता, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारा 0 के केस में 0 हो जाता। वहाँ पे कुछ हम इनकर ही नहीं करते भैया। अगर हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो हम लेबर को क्यों रखेंगे, अगर हम प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं तो हम रॉ मटेरियल क्यों परचेज करेंगे, तो 0 हो जाएगा वैल्यू। अगर हमारा 1 यूनिट का प्रोडक्शन है, लेट्स से हमारा 1 यूनिट का प्रोडक्शन है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या है 10 है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 10 ही होगा। क्यों? क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 10। हमारा वेरिएबल कॉस्ट का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो गया 1 से 2, 2 से 3, मीन्स इंक्रीज़ होते जा रहा है। ठीक है, सो एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक, यू कैन सी इन द चार्ट, जब हमारा लेवल 2 था तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 18 था, लेवल 3 हुआ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 24 हुआ, मीन सो ऑन। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालना है, तो भैया सिंपल सी बात है, डिवाइड करना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लेवल ऑफ आउटपुट से। सो 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 24 डिवाइडेड बाई 3 8 एंड सो ऑन। अब हम मूव ऑन करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के शेप के ऊपर। सो आप देख सकते हो ये एक यू शेप जैसा लग रहा है ना, एक टेढ़ा मेढ़ा यू टाइप का है। ठीक है, क्यों ये यू टाइप का क्यों है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये यू टाइप का क्यों है, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, मीन्स ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है, ऐसा क्यों है, पहले तो डाउनफॉल हो रहा है फिर इंक्रीज कर जा रहा है। सो इसका एक रीज़न है, एक सिंपल सी बात है। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये ग्राफ बना कैसे है। ठीक है, तो हमने एक्स एक्सिस लिया, उस पर हमने आउटपुट मेंशन किया, हमने वाई एक्सिस लिया, उस पर हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेंशन किया। सो आउटपुट 1 to 8 0 ओरिजिन लेवल एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 1 to 10, फाइन, हमने मेंशन किया। अब जब आउटपुट हमारा 1 था तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या था, 10 था। सो हमने 10 सबसे पहले ऊपर मेंशन किया। ठीक है, सेकेंडली जब हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ 2, तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हुआ।
यू कैन सी इन द चार्ट ऑल्सो कि जब 1 से आउटपुट इंक्रीज हुआ 2 तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, 10 से 9 आया, ठीक है, फिर 9 से 8 आया, 8 से 7 आया, मीन्स आउटपुट एक एक यूनिट बढ़ता जा रहा है और शुरुआत में जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो फॉल होता जा रहा है, ठीक है, एक डाउनफॉल हो रहा है उसमें, राइट। सो डाउनफॉल होते होते एक पॉइंट आता है जहाँ पे जो ये डाउनफॉल का रेशियो है ना वो बहुत छोटा सा हो जाता है। कैसे, आप चार्ट में देख सकते हो कि 4th पॉइंट पे हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या था, 7 था, ठीक है। 5th पॉइंट जब आया, 5th लेवल ऑफ आउटपुट जब आया तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ, थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ 6.4 का, फिर 6 पॉइंट पे 6.3 का, मतलब एक कांस्टेंट सा, मतलब बहुत माइनर सा गैप हो रहा है, जिसकी वजह से ये यू शेप का जो ये डाउनफॉल के बाद यहाँ से ये जॉइंट है ना यू, वो बन रहा है। क्यों, क्योंकि एक कांस्टेंट सा, मतलब माइनर सा डाउनफॉल है जिसे, मतलब जो हमें दिखेगा भी नहीं, ठीक है, उसकी वजह से एक यू शेप हो रहा है। और फिर वहाँ से जाने के बाद 7th पॉइंट के बाद 8th पॉइंट पे अचानक से इंक्रीज़ हो जा रहा है, एक अपवर्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है। एंड अगर हम ऐसे बनाते जाते 9th पॉइंट 10th पॉइंट, सो वो इंक्रीज़ होता, ठीक है। सो व्हाट इफ़ एनीवन आस्क्स यू कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सो आप स्टार्टिंग में आप डायरेक्टली कह सकते हो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज इन यू शेप। वाई इन यू शेप? इफ़ दैट पर्सन आस्क्स यू, अगर वो पूछता है कि यू शेप में क्यों है, कैसे है, सो सिंपली आप उसे मेंशन करो कि इट इज़ इन यू शेप जस्ट बिकॉज कि इन स्टार्टिंग द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स with the increase in level of output. After a fall, there comes a point where average variable cost becomes somewhat constant. ठीक है, a minor decrease is there, and after that there is upward flow according to the level of output that will represent the U shape of average variable cost. Clear here, guys? आई सब होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। अगर क्लियर हो रहे हैं गाइस तो डू सपोर्ट मी, बिकॉज आई नीड एनी टीचर हु इज़ ओवर देयर ऑन यूट्यूब, ही और शी नीड्स योर सपोर्ट, okay, your clear support, your clear judgment. If you like the video, then please like, comment and share, okay? So guys, and subscribe too if you like. So अगर नहीं like करते हो तो doesn't matter, don't like, okay? So let's move on to average cost. Now what is average cost? So average cost is cost per unit of output. एवरेज कॉस्ट इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। यहाँ पे हम फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं, जो कि डिफाइन कैसे करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट, okay? In other words, we can say average cost is the cost of per unit of output produced, ठीक है? It is also called unit cost of production, right? अब हमें इसे डिराइव कैसे करना है, तो भैया सिंपल सी बात है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ठीक है? अब हम आते हैं एक बड़े से चार्ट के ऊपर। यहाँ पे हम आपको पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं कि टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर दिया हुआ है तो हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कैसे डिराइव करते हैं। सो लेट्स से आउटपुट हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में मैंने क्या मेंशन किया है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, आउटपुट 0 हो या 8 हो या 1 हो या 6 हो, कांस्टेंट है हर लेवल पे। यू कैन सी क्लियरली 10 10 10 10 10, ठीक है। अब अगर हमें AFC निकालना हो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, ठीक है, हालांकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मेंशन किया कैसे निकालना है, बट यहाँ मैं रिवाइज कर रही हूँ, आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा सारे कॉस्ट का,
टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, हर तरह के कॉस्ट का एक क्लियर पिक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, सो इसी पर्पज़ से मैंने ये चार्ट यहाँ पे मेंशन किया है। सो आप देख सकते हो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा सेकंड कॉलम में मेंशन है, आउटपुट हमारा फर्स्ट कॉलम में मेंशन है। अब हमें AFC निकालना है। AFC निकालना, जब F वर्ड बीच में आया है तो हम F वर्ड की तरफ ही जाएंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व की तरफ जाएंगे। सो हमारा जो फिफ्थ कॉलम है वहाँ पे AFC मैंने मेंशन किया है। फॉर्मूला क्या होता है, TFC डिवाइडेड बाई Q। सो 10 डिवाइडेड बाई 0, 0 10 ज़ा 0, तो ऑब्वियसली 10 होगा। सेकेंड 1 पे अगर हम मूव ऑन करते हैं तो 5 हो जाता है, 2 पे मूव ऑन करते हैं तो 3 हो जाता है। मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 10 डिवाइडेड बाई 2 3.3, 10 डिवाइडेड बाई 3 2.5, 10 डिवाइडेड बाई 4 2, सो ऑन। हम डिवाइड करते गए और हमारा AFC डिराइव होता गया। यहाँ पे आप AFC कर्व का अगर स्लोप देखो, इस चार्ट में जो वैल्यू है वो देखो, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारा आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, एज द आउटपुट इज़ इंक्रीजिंग, इन द सेम वे एवरेज फिक्स कॉस्ट इज़ गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। एक इंक्रीज़ हो रहा है, मीन्स लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, और एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। थर्ड कॉलम में मैंने मेंशन किया है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैंने बोला कि 0 यूनिट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 रहेगा, वहाँ पे इनकर नहीं होगा, राइट। सो हमारा 0 पे 0 था, 1 पे 10 था, 2 पे 18 था, 3 पे 24 था, 4 पे 28 था, एंड सो ऑन। ठीक है, हमने ABC निकाला। कैसे निकाला? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाला? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सो हमने डिवाइड किया 1 को 10 से, सॉरी 10 को 1 से, सो 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 8, 28 डिवाइडेड बाय 4 7, एंड सो ऑन। तो ABC कर्व का अगर हम यहाँ पे स्लोप देखें तो ये स्लोप क्या है? ये स्लोप जो है पहले तो डिक्रीज़ कर रहा है एक अच्छे खासे रेशियो में, एक लेवल पे आने के बाद थोड़ा सा कांस्टेंट टाइप का हो जा रहा है, थोड़ा सा जो रेशियो है डाउनफॉल का वो डिक्रीज़ हो जा रहा है, बहुत माइनर पॉइंट से डिक्रीज़ हो रहा है जो हमें क्लियरली विजिबल भी नहीं होगा अगर हम स्केल ना लें। और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जब वो अचानक से फिर इंक्रीज़ कर रहा है, अपवर्ड फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो हमारा AFC कर्व का स्लोप कैसे होता है? डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ABC कर्व का स्लोप कैसा होता है? U शेप होता है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें AC कर्व की, तो सबसे पहले तो ये क्लियर करते हैं कि AC कर्व हम डिराइव कैसे किए। तो भैया TC कर्व से डिराइव किए। अब आप ये पूछो कि TC कैसे डिराइव किए, तो आप मेरे लास्ट वीडियो पे जाओ, वहाँ पे मैंने क्लियरली डिस्क्राइब किया है, बट यहाँ मैं समराइज़ कर देती हूँ कि TC हमने डिराइव किया है TFC और TVC को ऐड करके, ठीक है। तो हमारा TC हमारे सामने दिया हुआ है, AC हमें निकालना है, तो भैया TC डिवाइडेड बाई Q, 10 डिवाइडेड बाई 0 डैश, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 1 20, 28 डिवाइडेड बाई 2 14, 34 डिवाइडेड बाई 3 11.3, एंड सो ऑन। यहाँ पे भी अगर आप इस चार्ट को देखो, ग्राफ अभी मैं नहीं शो कर रही हूँ, बस AC कर्व का एक ग्राफ, एक वैल्यू दिया हुआ है, उस वैल्यू को देखो और इमेजिन करो कि इस कर्व का स्लोप कैसा हो सकता है। तो 20 हायर मोस्ट है तो सबसे टॉप पे होगा, ठीक है। उसके बाद 14 थोड़ा उससे नीचे आएगा, फिर 11.3 थोड़ा और नीचे आएगा, फिर 9.5 थोड़ा और नीचे आएगा, और 8.4 तक आएगा, ठीक है। 8.4 तक डाउनफॉल करने के बाद एक 6th लेवल आ रहा है जहाँ पे 8 हो जा रहा है, और 7th लेवल पे उसी 8 पे कांस्टेंट हो जा रहा है। मींस ऐसे गिर के आया और फिर यहाँ पे ऐसे U शेप की तरह ऐसे कांस्टेंट हो गया, ठीक है। कांस्टेंट होने के बाद फिर अचानक से इंक्रीज किया, एक अपवर्ड फ्लो हुआ 9.5 की तरफ। तो ये जो शेप बन रहा है आपके दिमाग में, ये शेप क्या बन रहा है? किस चीज़ का? भारत का मैप बन रहा है? इंडिया का मैप? नो, द शेप इज इन U शेप। मीन्स ऐसे गिरा, फिर ऐसे कांस्टेंट हुआ, फिर ऐसे उड़ गया, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन टू द शेप ऑल्सो। सो हेयर इज द चार्ट।
टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कैसे डिराइव किया मैंने बताया। अब सबसे पहले हम एक ऑरेंज कर्व की तरफ जाते हैं जो हमारा AFC है। AFC कर्व का स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। आई हैव क्लियरली मेंशन अ व्हाइल अगो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक। सेकेंडली जो AVC कर्व है यू शेप होता है, पहले तो डिक्रीज करता है और फिर धीरे कांस्टेंट होने के बाद धीरे से फिर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, यू शेप। अब हमने क्या कहना है कि एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होता है, तो एवरेज कॉस्ट जो हमारा होता है वो क्या है, समेशन है। एवरेज कॉस्ट क्या है, समेशन है, किस चीज़ का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक डाउनफॉल हो रहा है ना ऑरेंज कर्व में, AFC कर्व में डाउनफॉल हो रहा है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी हमारा डाउनफॉल हो रहा है स्टार्टिंग से, टॉप पॉइंट से 20 से, आप चार्ट में देखो 20 है, 14 है, डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है। फिर एक लेवल आता है जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट हो जाता है, तो सी हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट भी कांस्टेंट हो जा रहा है यू शेप में जाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज करता है, जैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करता है, सेम वैसे ही हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज करता है। एक सिंपल सी बात है, जब हम किसी दो चीज़ को ऐड कर रहे हैं, जब हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं, तो उन दोनों का जो एडिशन वाला पिक्चर होगा वही पिक्चर एवरेज कॉस्ट का होगा। सेम इन द केस ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का शेप कैसा होता है मैंने बताया था, बट यहाँ पे मैं ये आपको बता देती हूँ कि टोटल कॉस्ट भी समेशन होता है किसका, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो जैसे उसका स्लोप होता है, सेम वैसे ही टोटल कॉस्ट का भी स्लोप होता है। एक सिंपल सी बात यहाँ अपने दिमाग में फिट करने का कि एवरेज कॉस्ट इज द समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, द स्लोप ऑफ विच विल स्टार्ट डिमिनिशिंग विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करेगा, स्लोप क्या है, डिक्रीज करेगा। एक लेवल आएगा जहाँ पे हमारा जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो कांस्टेंट हो जाएगा, यू शेप ले लेगा, और फिर एक लेवल आएगा जहाँ से वो फिर अपवर्ड फ्लो करेगा। सो योर एवरेज कॉस्ट कर्व शेप इज ऑल्सो इन यू शेप। क्लियर? आई होप कि मैंने क्लियरली आप सभी को एक्सप्लेन किया होगा कि व्हाट इज़ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट इज़ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज़ एवरेज कॉस्ट, हम इनका शेप कैसे डिराइव करते हैं, इनका चार्ट क्या होता है, मीन्स एवरी पॉइंट आई होप कि मैंने कवर किया हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। सो गाइज, thank you for watching, and this is my channel. This is the different pages for Facebook, and yes, if you want the PDF of any video, any particular video of mine, you can go to my Telegram channel. I'll mention the link also in description section. You can join from there, okay? And thank you so much for watching the video. If you like the video, then please like, share and comment, okay? And सब्सक्राइब कर दियो यार।